Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan and today I welcome all of you guys to my YouTube channel, The Language Heaven. In this lecture, I'm going to elucidate you guys present perfect continuous tense in both active and passive voice. But before moving forward, I would like to tell you guys that if you're new to this channel, then please do subscribe my channel and also like my video if you're interested in it. So at first, let me introduce you guys the present perfect continuous tense. What is actually present perfect continuous tense? It is also called present perfect progressive tense, which is used to describe actions, यानी वो वाले एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यूइंग हैं, यानी अभी तक प्रेजेंट में वो जारी हैं, और वो वाले एक्शंस जो कि रिसेंटली अभी अभी रुके हैं लेकिन उनका प्रेजेंट मोमेंट पर भी एक इम्पैक्ट है. इस सब की एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू tell you guys the examples of all of this definition moving forward. But before this, I would like to tell you guys that it also emphasizes the duration or continuity of an action. यानी एक एक्शन की जो जारीपन है, उसकी जो दौरानिया है, ठीक है, उसे भी ये एम्फोसाइज लाजमन करता है. कैसे करता है ये सब कुछ आप लोगों को मैं मूविंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एग्जांपल ऑफ इट एज वेल. Okay, now we have understood what is present perfect continuous tense. And after this, we are going to understand the usage of this tense. How is this tense used in the language of spoken English and written English as well? So, actions, I've already told you guys that actions that have been started in the past and are still continuing. For example, let's understand the example. She has been studying for 3 hours. वो 3 घंटे के लिए पढ़ती रही है, ठीक है. Now, in this sentence, what can we understand? She has been studying. What does it mean? In this sentence, the has been phrase has been used. Has been is the phrase that is only used when a task has been committed or a task has been done in the past. Okay? So, has been phrase as a form of tense is used to refer to the past actions. So, she has been studying for 3 hours. It means कि एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, यानी पास्ट में वो पढ़ रही थी, ठीक है, और कितने घंटों के लिए? 3 घंटों के लिए वो पढ़ रही थी पास्ट में. इसका क्या मतलब है कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और 3 घंटों से वो काम जारी रहा है. ओके, सो for such type of sentences, present perfect continuous tense is usually used. The next sentence, they have been working at this company since 2015. Now, what does it mean? It means that has been already is used as a phrase for the actions that have been started in the past. So, they have यानी पास्ट में उन्होंने कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद वो काम अभी तक जारी है. Since 2015, it used this phrase is used for the progressive action for a time period of an action. So it means कि यहाँ पर एक काम पास्ट में जारी हुआ और वो 2015 से अभी तक जारी है वो काम, उसका प्रेजेंट में भी एक अफेक्ट है. तो ये इस टेंस की मिसाल है. ओके, actions that recently stopped but have a present effect. इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, आई हैव बिन रनिंग सो आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, यानी मैं दौड़ता रहा हूँ पास्ट में. Have been, I've already told you guys that this phrase is only used when an action has been committed or an action has been done in the past. So I have been running. This sentence is refers to the past, and so I am out of breath. यानी अब एक्शन प्रेजेंट की बात है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में उसकी सांस फूल गई है, ठीक है. तो अब 2 सेंटेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है क्योंकि इस टेंस का प्रेजेंट मोमेंट में एक अफेक्ट है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ. She has been crying. Her eyes are red.
इसका क्या मतलब है कि वो रोती रही है इसलिए उसकी आंखें सुर्ख हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात और कहेंगे कि यहाँ पर ना इसलिए फ्रेज के लिए इंग्लिश में कोई फ्रेज इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए, इंग्लिश एक बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, यहाँ पर बहुत सारी ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शंस आती रहती हैं। सो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस हैं, इनके दरमियान एक सेमी कॉलन आए हुए हैं, जिसका मतलब है कि इन ये दो सेंटेंसेस का सेपरेट मीनिंग है, इस वजह से यहाँ पर therefore नहीं लगाया गया। ओके, and the next thing that I want to explain you that she has been crying. Here, present perfect continuous tense has been used and her eyes are red. इसका क्या मतलब है? पास में काम शुरू हुआ, प्रेजेंट मोमेंट तक अभी तक उसका अफेक्ट है। Obviously, for sure, I want to tell you that in this tense, am and are, two helping verbs have been used that are totally irrelevant to the present perfect continuous tense. But why have these sentences been used along with the previous sentence related to the past tense? Because this tense is used to explain to you guys that for what actions that have been started recently stopped also have a parent effect. यानी यहाँ पर आप लोगों को इसलिए ये बताया, ये मिसाल आप लोगों को दी गई हैं, दो मिसालें, कि जो काम अभी अभी रुका है ना तो उसका पेरेंट इफेक्ट है। तो ये दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये एक पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिसाल है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एम और आर जो कि इररिलेवेंट हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, इस वजह से वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बुकिश स्टफ़ है ना, अब मैंने तो ये बहुत थॉरो रिसर्च करके ये सारे आप लोगों के लिए मिसालें सब कुछ निकाला है। बुकिश स्टफ़ में क्या होता है, वो जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल जो बुक्स हैं उसमें तो ये सब कुछ आप लोगों को बताया गया कि प्रेजेंट के एक टेंस की जो स्ट्रिक्टली जो एक मिसाल है ना वो इंग्लिश में आनी चाहिए, और उसके अलावा कोई और जो है ना उस टाइप का सेंटेंस उसमें नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंग्लिश ग्रामर है ना, एक तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, दूसरी बात यह है कि उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं और डिफरेंट टाइप्स की मिसालें होती हैं डिफरेंट टेंसेस की। तो यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए एक की मिसाल दी गई है जिसमें दो जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है, यानी अभी रिसेंटली रुका है एक काम, उसका प्रेजेंट इफेक्ट है। तो यहाँ पर एक पूरी मिसाल है इसकी। So until now, we have understood two different examples related to different aspects of present perfect continuous tense, and now we are going to understand that certain repeated actions that has been happening over time can also be related to present perfect continuous tense. यानी कुछ एक्शंस जो कि बार बार हो रही हैं, ठीक है, एक अरसा दौरानिया में, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है। जैसे ही हैज़ बीन कॉलिंग हर एवरी डे फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए उसे हर रोज़ कॉल करता रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि टाइम पीरियड हैज़ बिन एम्फोसाइज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर श्योर, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड लाजमी एम्फोसाइज होता है, उसका जिक्र होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल कोई भी एक्शन जो कि बार बार हो रहा है ना, तो उसके साथ एक टाइम पीरियड लगा दिया गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर आप लोग उर्दू में जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिसाल क्या है, तो वो ये है, जैसे वो ये काम इस अरसे तक करता रहा है, यानी ये काम जारी रहा है इस टाइम तक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लासिक एग्जांपल है। यानी उर्दू के ऐसे जिनमें एक काम होता रहा है, एक काम जारी रहा है इस अरसे दौरानिया तक, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग एक रफ सी एग्जांपल बता दी है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान है। तो यहाँ से आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव बीन अटेंडिंग योगा क्लासेस फॉर मंथ्स, यानी हम महीनों के लिए योगा क्लासेस लेते रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी है और रिपीटेड एक्शन है, बार बार होता रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है। ओके, we have understood the repeated actions aspect, and now we are going to understand that how some temporary situations can also be referred to the present perfect continuous tense in certain times. For example,
I have been staying with my aunt for a few weeks. What does it mean? It means that she or he has been staying with her aunt for a few weeks. Means that that wasn't temporary actions. That was not permanent. And in that sentence, time period has also been mentioned or emphasized. So it means that it is also a classic example of present perfect continuous tense. And how did we understood this? That the time period or a temporary situation. Next example. They have been traveling across Europe this summer. What does that mean? That this summer they had traveled across the Europe. It means कि ये टेम्पोररी सिचुएशन क्या वो काम हो गया बस. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है. हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे कुछ रिपीटेड एक्शंस हैं जो कि होते रहे हैं एक टाइम पर, फिर कुछ एक्शंस हैं जो कि रिसेंटली स्टॉप हुए हैं उसके बाद लेकिन इसका प्रेजेंट इफेक्ट है, फिर कुछ एक्शंस हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए हैं और प्रेजेंट में भी जारी होते रहे. ये सारे डिफरेंट दीज ऑल आर डिफरेंट nuances of present perfect continuous tense in different periods of time and their different situations. तो इस तरह से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. उसके बाद और जो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था उर्दू सेंटेंस का, तो वो भी आप लोगों को उससे समझ आ जाएगी. उसके बाद टू एक्सप्रेस annoyance or irritation, it means that you are annoyed by someone's habit and you are just irritated by someone is doing repeatedly. So you can also describe this action or this habit in the present perfect continuous tense. How? He has been complaining about a job at a lot lately. यानी वो हाल ही में अपनी जॉब के बारे में बहुत शिकायत करता रहा है. यानी वो जॉब that job is really disturbing him. That job is really interfering with his other matters or interfering with his peace, and that is why he has been so much complaining about that job. अब यहाँ पर हम लोग क्यों हमने लगाया, हम ये भी तो कह सकते थे that she is complaining about his job a lot. We could for sure say that she or he is complaining about, sorry, she is not complaining about his job, but he is complaining about his job a lot. लेकिन वहाँ पर हम लोग क्यों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि वहाँ पर टाइम पीरियड का जिक्र नहीं हुआ. तो यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड का जिक्र हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कहेंगे दैट ही हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट हिज जॉब अलॉट लेटली और शी हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट हर जॉब अलॉट लेटली. मैंने आप लोगों को अब 2 डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों को शी और ही में फ़र्क का भी पता हो. नेक्स्ट, he has been leaving the door open again and again. Now what does it mean? That he is leaving the door open time and again. Time and again is an idiomatic phrase. लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि वो एक काम बार बार कर रहा है, बार बार दरवाज़ा खोल रहा है जिससे इरिटेशन हो रही है. एंड दैट इज वाई हियर present perfect continuous tense is used and not the present progressive or present continuous tense because here time period is used. Until now, we have grasped the concept of present perfect continuous tense as a form of usage and in the form of definition. And now we are going to understand the grammatical structure of this tense. In the start, we would focus our attention on the affirmative sentences. Structure: subject plus has or have been plus verb with ing plus object or complement plus since for time expression. I have just read it generally, but now I'm going to explain it. पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव बिन आएगा. ठीक है. आई उसके साथ हैव आएगा. दे, वी, यू उन सब के साथ हैव बिन आएगा. लेकिन ही, शी, इट के साथ फॉर श्योर हैज़ बिन आएगा. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वर्ब तो लगेगा ही. कोई भी टेंस वर्ब के विदाउट इनकम्प्लीट होता है. ठीक है. तो वर्ब लगेगा, उसके साथ आईएनजी आएगा. क्यों आएगा आईएनजी? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, एक प्रोग्रेसिव जारी टेंस है, तो वर्ब के साथ तो आईएनजी लगेगा ही. उसके बाद साथ ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट वो
वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, या फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेशन जो कि बैकबोन है इस टेंस की। तो यहाँ पर सिंस या फॉर के टाइम एक्सप्रेशंस लगेंगे। तो सिंस फॉर कैसे लगेगा, तो ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे के लिए किताब पढ़ती रही हूँ। यहाँ पर आई के साथ हैव बिन, क्योंकि आई के साथ ऑब्वियसली हैव बिन लगता है। रीड, उसके साथ आई लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। दिस बुक ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है। दिस यहाँ पर डिटर्मिनर है। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours का क्या मतलब है कि यहाँ पर टाइम पीरियड का जिक्र हुआ है। फॉर क्यों लगेगा 2 hours के साथ, यहाँ पर सिंस भी तो लग सकता था। For is used when the time is unspecified, when you don't know that which uh, 2 hours you are referring to. 2 hours of the evening, 2 hours of the morning, what time period. So when the time is unspecified, then for is for sure used. Okay, you have to keep this thing in your mind that when you're not sure about which time period you're referring to, okay, then you have to use the word for. She has been working here since 2018. Now, what does that mean? She, उसके साथ हैज बिन आएगा, उसके साथ वर्किंग आएगा, वर्क के साथ ing, हेयर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सिंस 2018, सिंस 2018 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 2018 एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन से साल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा सिंस। ओके, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून। अब यहाँ पर ना फॉर आया ना सिंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बन गया। नाउ आई वुड अगेन लाइक टू टेल यू गाइस दैट इन द traditional grammatical books, or in traditional South Asian grammatical books, you would see that the for and since have been used for sure to refer to present perfect continuous tense. And they think that without for and since time expressions, this tense is incomplete. But no, no. Present perfect continuous tense is related to a tense that has a specific or unspecific time period in it, not specifically used with the words for and to. They have been playing football all afternoon. वो सारी दोपहर फुटबॉल खेलते रहे हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया है, लाजमी नहीं है कि फॉर अ सिंस आए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है। Now we are going to understand the negative sentences. How do we make negative sentences in this tense, present perfect continuous tense? Structure: subject plus has, have, not been. Yani, this is a very easy and straightforward manner that at first, like in the affirmative sentences, we have that at first subject comes, then has and have been. But what we are going to do here, at first the subject comes and then has or have, and then between has or have been, you are supposed to put not, and then the tense would be made. Then that usual verb plus ing would be written or spoken here, and object and complement plus since for time expression. Just what you have to do, you have to put a not between has or have been, and the negative tense would be made. Example: she has been not sleeping well lately, यानी वो हाल ही में अच्छी तरीके से नहीं सो रही। I have not been feeling well for the past few days. Okay, again, for the word is used with the past few days phrase. So why? At first, this is an example of negative sentence, obviously. On the other hand, past few days. Now we don't know which past few days. Is the past few days of which week, of which month, of which year? So that is why we would here put for the past few days. They have not been coming to class since last day. Since last, sorry, since last week.
So now we know that this is referred to last week, यानी पिछले हफ्ते की बात हो रही है. So that is why we would here put since. So this is an example of present perfect continuous tense in the negative tense. Now how to make the interrogative sentences? So this is also a very easy way. What you have to do, only you have to put the has or have before the subject, and then would come the been. Like in the affirmative sentences, what do we do? That at first you put the subject and then has or have been. But here in the interrogative sentences, you would at first put have or have, and then come the subject and then been. So the has or have been phrase would be broken down, and the subject would be put between these two words. Then verb or the verb and alongside ing plus object complement plus since for time expression. Have you been studying for the test? यानी तुम टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो. हैज शी बिन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है. हैव शी बिन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग? क्या वो यहाँ सुबह से क्या वो यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं. ओके, नाउ हियर वन nuance comes as well. Have you been studying for the test? Here now you would be thinking that no time period is used. Okay, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आर यू स्टडिंग फॉर द टेस्ट, बट दिस सेंटेंस आर यू स्टडिंग फॉर द टेस्ट फील्स मोर लेस टाइट हेयर, बिकॉज यू नो कि यहाँ पर ना हैव यू बिन स्टडिंग फॉर द टेस्ट का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बात करेंगे, क्या वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पढ़ रहा है या पढ़ रही है. लेकिन अगर आप कहें कि आर यू स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो वो थोड़ा ना लेस स्पेसिफिक हो जाता है, वो एक जनरल सेंटेंस बन जाता है, लूज हो जाता है. लेकिन यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि हैव यू बिन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, इसका मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेट करके बात करें कि अपने टेस्ट से पहले आज के दिन में इस टाइम में तुम पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है. Okay, so now we are going to center our attention on the negative interrogative sentences. How do we make them? Just like interrogative sentences, has or have comes, then subject plus been. But what change comes here? You put a not after subject. In interrogative sentences, you put a been after the subject, but here comes a not after the subject, and after this been comes. So this makes a difference. And then here, from that negative interrogative sentence is made. Then just casually verb ing plus object or complement plus since for time expression and a question mark, and then um, thereby negative interrogative sentence is made. Example: Has she not been attending the meetings? क्या वो meetings attend नहीं कर रही? Now this sentence examples can also be related to the previous example, like have you been studying for the test? तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेट करके सवाल पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा. देन हैजंट ही बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स? अब यहाँ पर बात हो रही है कि नॉट को शॉर्ट करके हैज़ के साथ लगा दिया गया. वैसे तो होता है कि हैज़ शी नॉट बिन, लेकिन यहाँ पर जो नॉट है उसे शॉर्ट करके हैज़ के साथ लगा दिया गया है, हैज़ंट बना दिया गया. देन ही बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स. तो इसी तरह से इस तरह के कुछ चेंजेस स्पोकन इंग्लिश में आते हैं. रिटन इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हैवंट दे बिन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग? तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का फ़र्क आया है कि नॉट को बिन के साथ हटाकर हैव के साथ लगा दिया गया है और उसे शॉर्ट कर दिया गया है. तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं. Okay, so far now we have covered all of the concepts related to this tense, and now we are going to grasp the difference between British and American English in this tense. तो इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वर्सेस सिंपल पास्ट, यहाँ पर इसका एक फ़र्क आ जाता है. अब ब्रिटेन में क्या होता है, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर.
मैं 1 घंटे तक तुम्हारे लिए इंतज़ार करती रही हूँ या करता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। एंड अमेरिकन में या अमेरिका में होता है आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही हूँ या करता रहा हूँ। तो अमेरिका में फ़र्क ये आ जाता है कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली इस तरह के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें थोड़े से फ़र्क आ जाते हैं। देन कम्स द डिफरेंस ऑफ हैज़ बिन वर्सेस बी गोइंग टू फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। यानी फ्यूचर प्रेडिक्शंस जब आप कर रहे हो तो ब्रिटिश में होता है वी हैव बीन प्लानिंग टू विजिट रोम नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल रोम का विजिट करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, लेकिन अमेरिकन में है वी आर गोइंग टू प्लान अ ट्रिप टू रोम नेक्स्ट ईयर। अमेरिका में एक फ़र्क आ जाता है और आर गोइंग टू, अब बी जो है ना उसकी जगह पर एम आर वास जो है ना इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। बी गोइंग टू का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर भी हम कहेंगे वी बी गोइंग टू प्लान अ ट्रिप, नहीं। बी यहाँ पर ना एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुआ। बी का मतलब है होना, ठीक है। तो उस होने की डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट जो है ना वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आर, एम, वास। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वी आर गोइंग टू प्लान अ ट्रिप टू रोम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर गोइंग टू जो है ये वाले फ्रेज इस्तेमाल होते हैं अमेरिकन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पर। उसके बाद कुछ स्पेलिंग और वोकैबुलरी के डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे ब्रिटिश में ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अलॉट लेटली, अमेरिकन में ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अलॉट लेटली। यहाँ पर आप नोट करेंगे किस तरह से ट्रैवलिंग वर्ड में अमेरिकन में एक एल ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क। उसके बाद ब्रिटिश में शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पर आप नोट करें कि जो वर्ड प्रैक्टिसिंग है उसमें एस है ब्रिटिश में, अमेरिकन में सी जो वर्ड लेटर आया है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक फ़र्क है स्पेलिंग का। मीनिंग इनका सेम रहेगा लेकिन स्पेलिंग का एक फ़र्क है। Now let's focus our attention on the common errors and corrections in present perfect continuous tense. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ कि सिंस और फॉर में स्ट्रिक्ट डिफरेंस है ये कि आई हैव बिन वेटिंग सिंस 2 आवर्स बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 2 आवर्स, 2 वर्ड्स, 2 डेज, सॉरी 2 डेज और इस तरह के जो फ्रेजेस हैं तो उनमें हमेशा फॉर आता है क्योंकि वो अनस्पेसिफाइड टाइम होता है। I have been waiting for 2 hours. This is the right type of sentence. Then she has been living here for 2015 और 2015 बिल्कुल गलत है। यहाँ पर for बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। She has been living here since 2015 ये बिल्कुल ठीक है। Then omitting been in present perfect continuous tense. He is working here for 5 years ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। जब तक बिन नहीं आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। In the long and short, I hope so that I have fully explained all of the concepts related to present perfect continuous tense, and I'm also hopeful that you people have understood that what is present perfect continuous tense, how it is used, what are the different variations in American and British English, and what are the different nuances in even using the present perfect continuous tense, the difference between since and for, and all of the different types of sentences and the different sentence structures. And if you have liked my video, then please do subscribe this channel. Do also hit the like button and also share this video with all of your friends, relatives, and family. Thank you so much.